Good morning everyone. Now today start chapter number 3, data handling. Okay. Data handling introductions. In your previous classes you have dealt with the various type of data. You have learned to the collect data, tabulate and put in the form of the bar graph. The collections, recording and presentations of data help to organize our experience and draw the inference from them. In this chapter we will take one more step toward learning to how to do this. You will come across some more the kinds data and graphs. You have seen several kind of data through the newspapers and magazines, televisions and other sources. You also know that all data is given the some sort information. Let us look at some common form of data that you come across. Now students, data handling chapter in your previous class 6 and class 5, data handling chapter you learn. Now collect data and tabular and put the form bar graph. Okay, so this chapter is one step toward learning how to do this. Okay, now this is temperature of city. This table 3.1, table 2 3.2 and table 3.3. Okay, now understand it. Temperature of cities as on 26th 6 June 2006 and Football World Cup 2006 and table 3.3 data show weekly after in the class. Now cities, okay, or max and minimum temperature and World Cup 2006 football in okay, Saudi Arabia, Ukraine, Spain beat tennis by and Switzerland beat Togo by. Or now table 3.3 weekly absence in a class. Okay, represent one child. Okay, these one child. Okay, now three tables. Okay, now collecting data. The data about the temperature of the city, table 3.1, can tell us many things but cannot tell city which the had highest maximum temperature during the year. To find that we need to collect data regarding the highest maximum temperatures in each of these cities during the year. In that case, the temperature chart of one particular date of the year as given in the table 3.1 will not be sufficient. Okay, now before collecting data we need to know what is would use for it. डेटा कलेक्ट करने के पहले हम कहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हैं. वी नो would use it for. Okay, performance your class in mathematics, performance India football or in cricket, female literacy and given area, the number of children's, organisms. चलो ये थोड़ा नॉट इम्पोर्टेंट बट यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन और डेटा के ऑर्गेनाइजेस कैसे करना है. ओके, यहाँ पर हमें गिवन है. ओके, व्हेन वी कलेक्ट डेटा, हमने देखो हम एग्ज़ाम लेंगे. ओके, लाइक हमारे मैथमेटिक्स की एग्ज़ाम है. ओके, ऐसे समझना है. और उसमें सारे स्टूडेंट के जितने मार्क्स आए उससे हमें देखना है. ओके, और हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं और लो मार्क्स किसके हैं और सारे स्टूडेंट कितने स्टूडेंट पास हैं,
कितने फेल हैं, ऐसे हम जो डेटा को कलेक्ट करते हैं और फिर उसको टेबल की फॉर्म में करते हैं। ओके, टेबल की फॉर्म में। ओके, तो उसे ऑर्गेनिजम्स ऑफ डेटा। ओके, यहाँ पर व्हेन वी कलेक्ट डेटा वी हैव रिकॉर्ड एंड ऑर्गेनाइज इट। ओके, व्हाई डू नीड to do that? Consider to following example. Nisa Neelam, class teacher, wanted to find how children had performed in English. She write the down marks obtained by the student in the following way. अभी यहाँ पर नीलम मैम है, मिस है, जो एक क्लास टीचर हैं। ओके, तो किस तरह से क्लास में इंग्लिश में परफॉर्मेंस किया है बच्चों ने, इसके लिए उसने मार्क्स, उन्होंने जितने मार्क्स मिले हैं इंग्लिश के सब्जेक्ट में वो वहाँ पर यहाँ पर इस तरह से लिखे हैं। ओके, 23, 35, 48, 30, 25, 46, 30, 27, 32 एंड 38। नाउ नीलम Collins help her organizations data in the following way. Table 3.4, roll number 1, 2, 3, 4, 5, names Ajay, Arman, Ashish, Deepti, Faizan। ओके, मार्क्स आउट ऑफ 50 में से अजय के 23, अरमान के 35, आशीष 48, दीप्ति 30, फैज़ान 25 एंड रोल नंबर 6, 7, 8, 9, 10, गोविंद 46, जय 30, कविता 27, मनीषा 32 एंड नीरज 38। ओके, आउट ऑफ 50 मार्क्स। ओके, उन्होंने ऑप्टेड किए हुए मार्क्स है। ओके, in this form Neelam and able to know which students has got how many marks, but she wanted more. Deepika suggests another way organization this data. Okay, यहाँ पर फर्स्ट है, इस तरह से नीलम मैम ने मार्क्स ऑर्गेनाइज किए हैं और यहाँ पर दीपिका है, उन्हें सजेस्ट करती है कि डेटा किस तरह से कलेक्ट और अनदर वे से ऑर्गेनाइज करना है। यहाँ पर देख सकते हो आप, रोल नंबर ये डिफरेंट हो गए। ओके, आशीष है जिसके हाईएस्ट मार्क्स है वो ऊपर आ गए हैं। ओके, देखो यहाँ पर आशीष के हाईएस्ट मार्क्स है 48, तो रोल नंबर 3। ओके, फिर गोविंद है 46, ऑप्टेन मार्क्स 46, यहाँ पर आप देख सकते हो। ओके, रोल नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये टेबल ऑर्गेनाइज किया है। यहाँ पर ये टेबल जो मार्क्स ऑप्टेन है, जिसके हाईएस्ट मार्क्स है वो डेटा ऊपर है। ओके, जो रोल नंबर 3 है जिसके हाईएस्ट है 48 और यहाँ पर रोल नंबर 7 है जय है इसके, जिसके 30 मार्क्स हैं। ओके, जिसके कम मार्क्स हैं, लोएस्ट टू हाईएस्ट टू लोएस्ट फॉर्म में यहाँ पर डेटा को ऑर्गेनाइज किया है, जिससे हम सिंपल वे से समझ सकते हैं। ओके, ट्राई दिस वेट इन द KG एटलीस्ट 20 चिल्ड्रंस। ट्राई दिस वाला क्वेश्चन हमें करना है। ओके, चलो नाउ यहाँ पर वेट इन KG ऑल एटलीस्ट 20 चिल्ड्रंस, गर्ल एंड बॉयज of your class, organize the data and answer the following questions using this data. Who is the heaviest of the class? What is the most common weight? What is the difference between your weight and that is best strength? अभी यहाँ पर क्या करना है बच्चों, 20 चिल्ड्रंस हैं जो उसके वेट लिखने हैं, KG में लिखना है। ओके, फिर उसको आप लाइक लिख लिया आपने कि सबके वेट लिखे आपने। ओके, फिर उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ओके, फिर आप उस हु इज़ द हैवीएस्ट ऑफ ऑल, तो उनमें से सबसे ज़्यादा चिल्ड्रंस जिसका हेवी वेट हो उसका यहाँ पर लिखना है। ओके, और यहाँ पर व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन वेट, तो जिस मैक्सिमम वेट हो, लाइक हमने 20 स्टूडेंट ऐसे ले लिए। ओके, एक के 40 हैं, एक के 35 हैं। ओके, तो हाईएस्ट कॉमन वेट मतलब कि आप सबसे ज़्यादा ओके किस वेट के आती हैं। ओके, बच्चों का मैक्सिमम नंबर टाइम। ओके, इसका आंसर लिखना है, ये अपने आप थोड़ा करके देखें। ओके, फिर रिप्रेजेंट एक्टिव वैल्यूज़। ओके, नाउ
चलो नाउ डायरेक्ट हम ये एरिथमेटिकल मीन्स समझते हैं. ओके, the most common representative value of group of data is arithmetical mean or the mean. The understand is the better way. Let's look at the following example. Two vessels contain 20 liters and 60 liters milk presently. What is the almost that each vessel would have if both share the milk equal? When we ask questions, we are seeking arithmetical means. Okay, यहाँ पर देखो द above case the average of the arithmetical means would be. एवरेज निकालना है. ओके, तो देखो एक वेसल है, एक कंटेनर है जिसमें 20 लीटर्स मिल्क आता है और सेकेंड है 60 लीटर मिल्क आता है. ओके, तो व्हाट इज द अमाउंट द ईच वेसल वुड हैव इफ बोथ शेयर टू मिल्क. अभी यहाँ पर को शेयर करना हो मिल्क. ओके, तो 20 + 60 डिवाइडेड बाई 2 liters, तो 40 liters milk. ओके, each vessel would have 40 liters milk. ओके, average of arithmeticals AM or simply mean to define the follows. Okay, means sum of the observations and number of observation. Now example 1, Ashish study 4 hours, 5 hours and 3 hours is presently on 3 कंटिन्यूसली डेज. अभी एक आशीष है जो स्टडी करता है, एक दिन 4 आवर्स करता है, सेकेंड डे है जो 5 आवर्स करता है और थर्ड डे वो 3 आवर्स ही स्टडी करता है. ओके, कंटिन्यूसली. ओके, हाउ मेनी आवर्स डज ही स्टडी डेली ऑन एवरेज. एवरेज निकालना है. ओके, देखो ये फर्स्ट डे उसने 4 आवर्स की. ओके, सेकेंड डे उसने 5 आवर्स की और थर्ड डे उसने 3 आवर्स के. तो एवरेजली कितने आशीष ने स्टडी की, कितने टाइम, एवरेज स्टडी टाइम. ओके, आशीष विल बी, तो कैसे करेंगे हम, तो टोटल नंबर ऑफ स्टडी आवर्स एंड नंबर ऑफ डे फॉर विच ही स्टडीज. ओके, 4 + 5 + 3 और 3 days. ओके, नंबर ऑफ डे. ओके, तो 3 days. ओके, तो 4 + 5 + 3. ओके, 9 + 3 9 10 11 और 12. ओके, 12 यहाँ पर आता है. ओके, 12/3, तो 12 को 3 से डिवाइड करना है तो 4 आवर्स. तो पर उसने तीनों दिन एवरेज स्टडी कितनी की, 4 आवर्स की. ओके, डेली एवरेज स्टडी. ओके, नाउ अंडरस्टैंड इट. नाउ एग्जांपल 2, अ बैट्समैन स्कोर द फॉलोइंग नंबर्स ऑफ रन इन 6 इनिंग. अभी यहाँ पर बैट्समैन है जिसके स्कोर है following numbers of the runs in 6 innings: 36, 35, 50, 46, 60 and 55. ओके, एक बैट्समैन है जिसने अलग अलग इनिंग में स्कोर किए हैं. ओके, तो टोटल रन उसके कितने इनिंग्स है, 1 2 3 4 5 6. ओके, तो एवरेज रन किसे हम फाइंड आउट करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ रन. Okay, now divided by number of days innings of which is a play. Okay, scored. Understand it. Now यहाँ पर 282 divided by 6, तो आंसर इज 47. ओके, नाउ चलो हमें एग्जाम्पल 3 समझ लेते हैं. ओके, फिर आप इस तरह से हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. ओके, एक्सरसाइज 3.1. ओके, एग्जाम्पल नंबर 3 है, द एज इन ईयर्स ऑफ 10 टीचर्स ऑफ द स्कूल आर. अभी हमारे स्कूल के 10 टीचर्स की एज के बारे में यहाँ पर बात करें. ओके, मतलब कि टीचर्स की एज के बारे में. तो एक टीचर है 32 ईयर्स की, सेकेंड टीचर है 41 ईयर्स ओल्ड है, थर्ड टीचर है 28 ईयर्स, 54, 35, 26, 32, 23, 33, 38 और 40. ओके, तो व्हाट इज द एज ऑफ ओल्डेस्ट टीचर्स एंड देन द यंगेस्ट टीचर. तो ओल्ड टीचर कौन है, यहाँ पर देखो हाईएस्ट 54 है. ओके, तो नाउ हम बोल सकते हैं कि द
फर्स्ट हम देखिए यहाँ पर हम डायरेक्टली देख के भी बोल सकते हैं, बट यहाँ पर ऑर्डर टू जाना है. अरेंज इज एज इन असेंडिंग ऑर्डर. वी गेट 23. ओके, पहले असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है. 23, 26, 28, 32, 33, 35, 38, 40, 41 एंड 54. ओके, तो नाउ वी फाइंड द एज ऑफ द ओल्डेस्ट टीचर 54 years and the age of youngest teacher is 23. Understand it? Now range of the age of teachers. अभी टीचर, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द एज ऑफ द टीचर. टीचर की रेंज कितनी ईयर्स की है ऐसे ढूंढना है. तो हाईएस्ट फैक्टर में से लोएस्ट फैक्टर को माइनस करना है. ओके, तो 31 ईयर्स. ओके, और नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मीन एज ऑफ दिस टीचर्स. व्हाट इज़ द मीन एज. ओके, तो मतलब कि एवरेज निकालना है. ओके, मीन का मतलब क्या है, एवरेज निकालना है. ओके, तो सारे टीचरों की एज की सम करना है और टोटल टीचर्स लिखना है. तो मीन एज ऑफ द टीचर्स 23, 26, 28, 32, 33, 35, 38, 40, 41 and 54 and 10 years. Okay, तो now 350 upon by 10 years तो 35 years. Okay, now नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं एक्सरसाइज 3.1. नाउ टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन चिल्ड्रंस.